everyone. Let's start another topic from Hindu Adoptions and Maintenance Act 1956, and this is about some facts about valid adoption. All of you now well aware about what is valid adoption. I hope you have watched that session where I explained the requirements or conditions for a valid adoption. अगर आप एक adoption कर रहे हो तो उसके लिए क्या क्या requirements must है. Go and watch that session. The link is given on the top. Only after doing that session you are going to understand these facts. So these facts are covered in section 15 and 16. We will do these sections right now, but before that, even in the very last session, students, I explained about some effects of these valid adoption. अगर कोई adoption हुआ है तो उसके बाद क्या क्या changes आ जाते हैं उस person की life में भी, उस person का link क्या हो जाता है with the other family, and how the property will be treated for that person. So we have seen all those effects. If you have not watched that session, also on the top you see the link, go and watch that sessions also. Now coming about these facts of 15 and 16, but before discussing these, I want to tell you students that this is our official contact number and this is our official mail address. If you have any queries, any doubts, just send us your query and we will solve it as soon as possible. And I want to tell you students, just start taking our membership plans of this YouTube channel. Many of the students have already joined our this membership term and they are enjoying those offers, those surprises that they are getting access to. Those who have not joined, go, because the things that are available for members, that is not for the general one, and members are getting access to many more other sessions, updated sessions, and many practice questions for your judiciary exam. So membership plan को आप जितनी जल्दी लेंगे उतना ही आपके लिए एडवांटेज होगा. Now discussing about these some facts of valid adoption, the very first that we are focusing on, relationship of adopted child. जब एक चाइल्ड फैमिली में अडॉप्ट किया जाता है तो एडॉप्शन के बाद उस चाइल्ड का पर्टिकुलर मेंबर्स के साथ क्या रिलेशन होगा, व्हाट is that relation termed in the eyes of law, that we will see here. So number one, where a Hindu who has a wife, means यहाँ पर एक मेल की बात हो रही है जिसकी वाइफ लिविंग है, adopts a child, ओके, मेल अडॉप्ट कर रहा है चाइल्ड को, तो जो वो चाइल्ड अडॉप्ट कर रहा है, शी शैल बी डीम टू बी द एडॉप्टिव मदर. जो वो वाइफ होंगी वो उस चाइल्ड की एडॉप्टिव मदर कहलाई जाएंगी. सपोज फादर है, वो इस चाइल्ड को फैमिली में अडॉप्ट करके ला रहा है, तो जो फादर की वाइफ होंगी वो उस चाइल्ड की इन द आइज ऑफ लॉ एडॉप्टिव मदर कहलाई जाएंगी, नॉट नेचुरल मदर, एडॉप्टिव मदर. Then next is where an adoption has been made with the consent of more than one wife. Okay, suppose a person like male, if he has more than one wife living at that time, तो जब एक चाइल्ड फैमिली में लाया जाता है तो उस चाइल्ड की जो सीनियर मोस्ट वाइफ होंगी, उस मेल की जो सीनियर मोस्ट वाइफ मीन्स जो सबसे फर्स्ट नंबर की वाइफ होंगी, उस वाइफ का रिलेशन उस चाइल्ड के साथ एक एडॉप्टिव मदर का होगा, एंड रेस्ट जितनी भी वाइफ्स होंगी उनका रिलेशन उस चाइल्ड के साथ स्टेप मदर का होगा. मीन्स इन द आइज ऑफ लॉ अगर कहीं पर भी रिलेशन शो करना है तो वो सबसे बड़ आई कैन से सीनियर मोस्ट वाइफ को एक एडॉप्टिव माँ का दर्जा देगा और बाकी वाइफ्स को वो चाइल्ड स्टेप मदर के नाम से बुलाएगा. फाइन. देन नेक्स्ट इज वेयर अ विडोवर और अ बैचलर. यहाँ पर अगेन एक मेल की बात हो रही है. मेल जो एक विडोवर है या बैचलर है, adopts a child. अब right now he has no wife at that time, living at that time of adoption, but later on any wife whom he subsequently marries, अगर वो किसी लेडी को बाद में शादी करता है, मीन्स एडॉप्शन पहले हो चुकी है, घर में अडॉप्टेड चाइल्ड पहले आ गया है, एंड दैट मेल इज नाउ मैरिंग सम अदर गर्ल, then that lady would not be treated a adoptive mother as in the first case. She will be deemed to be a stepmother of the adopted child.
राइट, शी विल बी टर्म्ड एज अ स्टेप मदर, नॉट एन एडॉप्टिव मदर। तो ये आपका क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में आ सकता है। जो लेटर ऑन वाइफ आती हैं शादी के बाद, उनको हम स्टेप मदर का दर्जा देंगे, जो एट द टाइम लिविंग होंगी वो एडॉप्टिव मदर कहलाई जाएंगी। सेम इज द केस फॉर अ लेडी वेयर अ विडो या फिर कोई अनमैरिड वुमेन है, वो पहले एक चाइल्ड को अडॉप्ट कर लेती हैं और बाद में किसी मेल पर्सन से शादी करती हैं, तो जो उनके वो हस्बैंड होंगे लेटर ऑन वाले विल बी टर्म्ड एज अ स्टेप फादर, नॉट एडॉप्टिव फादर, उनको स्टेप फादर बोला जाएगा। Right, so these are the major effects of relationship. Now next, some fact of valid adoption is valid adoption not to be cancelled. अगर एक बार एडॉप्शन हो चुका है, आप किसी भी पर्सन को अडॉप्ट करके अपनी फैमिली में ले आए हो, तो लेटर ऑन जाकर ये नहीं होता कि उस एडॉप्शन को आप कैंसिल कर दोगे। यू कैन नॉट प्ले विद द लाइफ ऑफ अ पर्सन। So adoption once happened cannot be cancelled, and this is mostly mentioned in section 15. So section 15 को हम read करते हैं, and it is very very important. What it says that an adoption once made is irrevocable. Means once an adoption is made, it cannot be changed. A valid adoption made by any person cannot be cancelled by any of the parties. कोई इसको cancel नहीं करेंगे। Suppose father ले आते हैं और later उनकी wife उसको accept नहीं करती है, it's not like that. Once you have done an adoption, you cannot cancel it, or neither party can cancel it, or any other person cannot cancel it, nor can the adopted child, even जो child adopt करके उस family में आया है, suppose this girl has came in a new family, even she can't give up his or her status as such adopted child. वो अपना status भी नहीं अब छोड़ सकती, और ये भी नहीं होगा कि वो जिस फैमिली में उसने बर्थ लिया था वहां पर अपने राइट्स क्लेम करें, वापस वहीं जाना चाहेगी, नो। बट येस, देर आर सर्टेन थिंग्स, जो मैंने लास्ट सेशन में बताया कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ऑलरेडी उसकी प्रीवियस ओल्ड फैमिली में अगर कोई प्रॉपर्टी थी जो एडॉप्शन से पहले उसको दी गई थी, उसको वो अपना क्लेम कर सकती है। All right, so this is very very important, section 15. Coming to the next fact about section 16. Section 16, students, I'm putting here star. It is very very important, so kindly pay your attention in this section 16. It is talking about proof of adoption. So in the eyes of law, what is proof? And if you remember, तो already मैं एक proof करवा चुकी हूँ कि क्या एक जब वैलिड एडॉप्शन होती है तो उसमें जो सेरेमनीज होती हैं, व्हाट आर दोज मेजर फॉर्मेलिटी दैट नीड टू बी डन। सो वैलिड एडॉप्शन के केस में व्हाट हैव टू बी डन टू मेक इट टू शो इट एन एडॉप्शन, दैट इज जस्ट गिविंग एंड टेकिंग ऑफ अ चाइल्ड। एक प्रॉपर गिविंग एंड टेकिंग सेरेमनी होनी चाहिए, मीन्स द family who wants to give that child, there should be a complete process of giving, and the one who are taking them into the family, they also be ready to get it into their family. So giving and taking ka jo ceremony hai, it's the most important, and if it is being there, then there is no need of any other proof. So those who have not watched this session where I explained this, on the top you see the link, go and watch the uh, steps to be done during valid adoption. Now let's have a look of this proof of adoption. No writing या एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट इज नेसेसरी। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लिखित में कुछ देना है एक एडॉप्शन को वैलिड करवाने के लिए। सो द इफेक्ट ऑफ एडॉप्शन मस्ट बी प्रूव्ड विद कोजेंट एविडेंस, एंड द बर्डन इज ऑन द पर्सन हु सेट्स एन एडॉप्शन। ये पहले ऐसा होता था, जिसने एडॉप्शन किया है, जिस पर्सन ने, उसको प्रूव करना होता था कि मैंने इस पर्सन को अडॉप्ट किया है। द लॉ एज टू प्रूफ ऑफ ऑरल और रिटन एडॉप्शन इज सेम एज इट वॉज बिफोर दिस एक्ट, ऐसा सेम था। But now according to this section 16, once now this section this new act has came, section 16 क्या कहता है, that an adoption which is witnessed by registered deed, अगर साथ में एक रजिस्टर्ड डीड लिखवाई गई है, सपोज एक डॉक्यूमेंट होता है एक रजिस्टर्ड डीड, जिसको हम परफेक्ट रजिस्टर्ड डीड के बारे में, इफ़ यू हैव नॉट नो नॉलेज, देन वी हैव डन दिस टॉपिक इन द रजिस्ट्रेशन एक्ट। रजिस्ट्रेशन एक्ट अगर किसी ने कंप्लीट नहीं किया है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसको कंप्लीट करने के लिए मैं प्लेलिस्ट को टॉप पर लिंक दे रही हूँ, जाइए इसको देखिए। और रजिस्ट्रेशन एक्ट की जब आप प्लेलिस्ट पूरी देखेंगे तो इसी में ही एक आपको सेशन मिलेगा अबाउट द रजिस्टर्ड डीड,
क्या होती है एक रजिस्टर्ड डीड। तो अगर आपको ये भी समझना है, इसका लिंक मैं आपको, इस पर्टिकुलर वीडियो का लिंक मैं आपको ऊपर दे रही हूँ, जाइए। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि एडॉप्शन करते वक्त अगर आपने कुछ रिटर्न में प्रूफ में कुछ लिखा था, सपोज आपने कुछ रिटर्न में मेजर थिंग्स लिखी थी, दैट वी आर अडॉप्टिंग दिस पर्टिकुलर पर्सन फ्रॉम दिस इन दिस फैमिली एंड वी आर ब्रिंगिंग इट टू दिस एंड फ्रॉम दिस टू दिस डेट, सिग्नेचर्स हैं, तो ये एक प्रिज्यूम, एक डॉक्यूमेंट, ये एक प्रिजम्पशन होगी, एक प्रूफ की प्रिजम्पशन होगी टू बी वैलिड। ओके अगर आपके पास कोई और ऐसा पॉजिटिव एविडेंस नहीं है जिससे आप डिसप्रूव करो, तो वो एक रजिस्टर्ड डीड परफेक्ट प्रूफ का एक एविडेंस है। द बर्डन ऑफ प्रूफ नाउ शिफ्ट्स ऑन द पर्सन जो उस एडॉप्शन पर क्वेश्चन उठा रहा है कि नहीं नहीं ये एडॉप्शन वैलिड नहीं थी, तो अब आपको प्रूव करना होगा, क्योंकि अगली पार्टी ने तो देखो रजिस्टर्ड डीड शो कर दी है कि देखिए हमने तो प्रॉपर एडॉप्शन कर रखी है। सो दिस इज द थिंग। नाउ as I said earlier also, the act of giving and taking in adoption is very important and it has to be proved positively. If you have done this, then no other presumption can prove it. सेक्शन 16 का फिर क्वेश्चन ही नहीं राइज होएगा अगर आपने ऐसा किया ही नहीं है। गिविंग एंड टेकिंग तो मस्ट है एंड द प्रिजम्पशन प्रोवाइडेड अंडर दिस सेक्शन ये रेब्यूटेबल हो सकती है अगर आपने कोई और पॉजिटिव एविडेंस दे दिया है, सॉलिड एविडेंस अगर आपने शो कर दिया है तो ये भी डिस्क्लेम हो जाएगी। Let's have a look at this famous cases. So what it says that in Dhanno versus Tuhiram, मेयर प्लेसिंग अ रजिस्टर्ड एडॉप्शन डीड, जस्ट आपने कोर्ट में जाकर रजिस्टर्ड डीड शो कर दी है विदाउट द प्रूफ ऑफ सेरेमनीज, ये दिखाने के बजाय कि आपने गिविंग एंड टेकिंग की सेरेमनी करी थी या नहीं करी थी, इसका आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, बट आपने रजिस्टर्ड डीड दिखा दी है, सो दैट will be termed as no adoption. Without proving adoption, adoptee was treated as his son by adopter, there is no valid adoption. इसको हम नहीं मानेंगे क्योंकि आपको गिविंग टेकिंग का तो दिखाना ही था, दैट इज मस्ट। एंड देर इज ऑल्सो अनदर केस इन जय सिंह वर्सेज शकुंतला। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कहती है सेक्शन 16 में कि अगर आपने गिविंग एंड टेकिंग करी है प्लस इफ यू हैव अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, देन दैट डॉक्यूमेंट वुड बी प्रिज्यूम टू दैट एडॉप्शन हैज बीन मेड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। आपने वो जो अडॉप्शन की है वो अकॉर्डिंगली की है, लॉ के अकॉर्डिंग किया है। सो दीज sections I hope are understood to you, very important all of these were, and in this playlist of Hindu Adoption Maintenance Act, dear students, we have completed adoption part, and next in session we will move to maintenance part. What is this maintenance means and how a person can claim for maintenance, तो ये हम समझेंगे बिकॉज हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में आपके दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं। एडॉप्शन के से रिलेटेड सारे सेक्शंस हम डिस्कस कर चुके हैं, मेंटेनेंस का भी स्टार्ट होगा, सो डोंट स्किप द सेशन, watch continuously, maintain this continuity in your practice. Don't forget to subscribe, share it more and more. If you have any doubt, comment us, or you can tell your query through these ways. Follow us on these ways for more updates.